प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। आपका जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, वोल्टेक सेल है, इसका हम लोग कैसे इनोड सेल निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जो गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक सल्फेट और ये जिंक का इलेक्ट्रोड जो एनोड का काम करता है, इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डिप है और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है यहाँ पर, इसको कैथोड, और ये हमारा एनोड है। और यहाँ से हम लोग ऐसे एक वोल्ट मीटर हमने लगाया है। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड यू नो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट इंटरनल सर्किट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज डीपोलराइजर। बच्चों, यहाँ पर इस गैल्वेनिक सेल का या वोल्टेक सेल का जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो वैल्यू है। एक तो हो गया हमारा ई सेल, ये हो जाएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और दूसरा है हमारा ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं ई सेल है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ सेल। और ये आपकी जो वैल्यू है, ये जब हमारी कंडीशनल नॉन नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, तो यहाँ हमने ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे ये हम ले सकते हैं ई सेल। और ये जो राइट साइड में हमारा कॉपर रखा है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज लेफ्ट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक हाफ सेल, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड और इट इज नॉन एज जिंक हाफ सेल। और इसका जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है at given conditions at given concentration, and here it is standard value, means 1 molar when the concentration of this zinc sulfate and concentration of this copper sulfate is 1 mole per liter at 298 Kelvin temperature. So at that condition we will take this value. And the value of this E node cell or E cell is determined by using this standard hydrogen electrode. This is known as reference electrode. This is also known as reference electrode. Reference electrode, why it is known reference? Because the value of this electrode is taken as 0. So this is a reference electrode. And it is known as SHE, S for standard, H for hydrogen, E for electrode, or normal hydrogen electrode. So normal hydrogen means when conditions are at STP for solution, 1 molar solution is taken. So here this is standard hydrogen electrode, you are looking here in this diagram, student. This is a container, a simple cell, electrochemical cell, and this is a sealed glass tube. This is a sealed glass tube, this one, and this sealed glass tube also again fitted in this another cover, this one. So this sealed glass tube contain a platinum wire. This is a platinum wire, and its lower end inside the solution, this has a platinum foil. Platinum foil means to increase the surface area, so maximum area of this platinum wire should be in contact of solution. So to increase area, platinum foil is used, and this container contains
1 molar solution of acid. Any acid may be taken, and here hydrochloric acid is taken because normality and molarity of hydrochloric acid is equal. And H2 gas at 1 atmospheric pressure is bubbled through the container. So this is normal hydrogen electrode, and value of this normal hydrogen electrode, the potential of this reduction potential, it may be written like this, it is 0.0 volt. Means this is one terminal, like we are having two terminal at home, you know. In this circuit we are having a bulb, and in this bulb we are having one positive and one negative. So the potential of this terminal 0 and potential of this terminal is 220 volt. So total difference is 220 volt. So this terminal taken as reference terminal. ओके जैसे हमें कोई भी डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, जैसे हमें निकालना दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो दिल्ली यहाँ से जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कितना किलोमीटर है, तो वहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर वो 0 से स्टार्ट करेंगे। आप रेलवे स्टेशन से ले रहे हैं या बस स्टैंड से ले रहे हैं या जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से ले रहे हैं, तो वहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, तो उसका मतलब वो रेफरेंस हो गया आपका, वो जो प्लेस है जहाँ से आप मेजरमेंट शुरू करेंगे वो रेफरेंस हो गया। तो सिमिलरली दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नोन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखते हैं कि आपका जिंक, और जिंक के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, तो इसका मतलब ये आपका जिंक मोर एक्टिव हो गया, हाइड्रोजन लेस एक्टिव हो गया। तो जब हमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है बच्चों, तो यहाँ पर इसको हम जैसे यहाँ पर ये 0 और ये पॉजिटिव, तो हम मोर एक्टिव इस साइड में लेते हैं हमेशा। सेल को जब हम डिजाइन करते हैं, सेल को हम ड्रॉ करते हैं, तो मोर एक्टिव जो पार्ट है दैट इज इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज मोर एक्टिव मेटल, and on right hand side we take also always less active. So remember, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो cell will not work. More active on right left hand side and less active on, means जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या रिएक्टिविटी सीरीज है ये, इसमें जो ऊपर होगा एलिमेंट वो लेफ्ट साइड में होगा, जो नीचे की साइड में रखा होगा वो हम लोग हमेशा राइट साइड में लेंगे। तो जब हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो ये आपका जो बच्चों ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ कॉपर के लिए, इसके लिए जिंक के लिए, अगर आपको जिंक इलेक्ट्रोड का, जिंक हाफ सेल का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए इसमें तो कैसे वैल्यू आएगी, ये आप देख रहे हैं हमने अब इसमें जिंक को हमने राइट साइड में लिया है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने लेफ्ट साइड में लिया है। तो यहाँ से आप देखें कैसे हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट। तो अब यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, तो वोल्ट मीटर में जब हम यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड लगा के इन दोनों को कनेक्शन कर देंगे, आप ये शॉर्ट ब्रिज का इसमें कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पर बच्चों इसमें पूरा एक सेल बन गया, ये एक कंप्लीट सेल बन गया। ये क्या है हमारा, ये है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये क्या है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक हाफ सेल, और ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है इसमें आप मेजर करेंगे, ये वैल्यू आई है 0.76 वोल्ट। तो राइट साइड में क्या है हमारे हाइड्रोजन का, इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट, और माइनस, तो ये वैल्यू
यहाँ पर ये आ जाएगा लेफ्ट। तो इसका मतलब जो ई नोड लेफ्ट यहाँ से आ जाएगा, ई नोड लेफ्ट स्टैंडर्ड वैल्यू ये आपकी आ जाएगी हाउ मच, -0.76 वोल्ट। तो ये क्या है ई लेफ्ट, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ई जो लेफ्ट है हमारा ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखेंगे वह बच्चों -0.76 वोल्ट। तो ये रोल है हमारा किसका, ये रोल है हमारा मीन्स जैसे आप स्केल ले रहे हैं तो जो आप स्केल से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी टेबल की आप लेंथ निकालेंगे तो स्केल का 0 पॉइंट से शुरू करेंगे, तो वो 0 स्केल है, ये 0 पॉइंट है। तो ये या 1 से शुरू करेंगे तो वहाँ पे अगर टोटल लेंथ आपकी 10 आ रही है 1 to 10, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे दिस माइनस दिस। तो आप देखें यहाँ पर ऐसे इसको जो हमारा कनेक्शन है इसको हम कनेक्ट करेंगे दोनों सेल को और यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आ जाएगी 0.76 वोल्ट। हार्डवेयर इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी 0.0 वोल्ट। तो हम ई लेफ्ट, ई नोड लेफ्ट मीन्स जिंक का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस बच्चों। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अगर हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालना है तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए आप देखेंगे कि क्या करेंगे आप लोग। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए फिर हम आते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये आपका Zn हाइड्रोजन Cu। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और कॉपर में कौन मोर इलेक्ट्रो हुआ, हाइड्रोजन। ये आपका इसका मतलब आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और ये आएगा राइट हैंड साइड में। तो कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए जब हम निकालेंगे तो आप कैसे इसको सेट करेंगे, ये जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये आपका इस साइड में आ जाएगा और इस साइड में हमारा क्या आ गया कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप देख रहे हैं बच्चों फिर वही लेफ्ट हैंड साइड में मोर एक्टिव, तो हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर हमने राइट हैंड साइड में ले लिया और हाइड्रोजन हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे आप ई नोड सेल का और ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आती है हमारी, जब यहाँ वोल्ट मीटर में आप चेक करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट कॉपर के लिए। तो ये हो जाएगा ई राइट। तो ई राइट क्या हो गया हमारा, ई राइट में आपका हो गया कॉपर, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। और माइनस लेफ्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये 0.0 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से हमारा ई राइट कितना आ गया, ई राइट हो गया हमारा प्लस 0.34 वोल्ट। तो ई राइट क्या है, ई नोड राइट क्या है हमारा, स्टैंडर्ड वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ई नोड राइट क्या हो गया, ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu। तो ये वैल्यू आ गई प्लस 0.34 वोल्ट। तो आपकी बुक में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है उसके लिए आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0.34 वोल्ट आएगी। सिमिलरली अगर आपको सिल्वर का निकालना है तो सिल्वर इज प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिलो दिस। तो सिल्वर का निकालेंगे तो सिल्वर का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से आप ये हाइड्रोजन और इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा ये आएगा यहीं पर और यहाँ पर बच्चों ये कॉपर की जगह हम सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे। कॉपर की जगह आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लेंगे और यहाँ पर इसके प्लेस पे आप ले लेंगे AgNO3 या AgCl का सॉल्ट और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये हो जाएगा हमारा Ag। तो बिल्कुल उसी टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। और ये फिर ई नोड सेल मतलब सेल का जो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किससे फाइंड आउट कर लेंगे आप,
वो कैसे पता लगेगा आपको? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? ये जो आपका वोल्ट मीटर है, अब इसमें वैल्यू आ गई है 0.80 वोल्ट इज इक्वल टू ई नोड। किसके लिए है ये फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड। ये हम आपको बता रहे हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। तो यहाँ आ जाएगा आर और माइनस ई नोड। लेफ्ट में क्या है आपके, अभी क्या रखा लेफ्ट में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.0 वोल्ट। तो इस तरह से यहाँ पर ई नोड आर जो वैल्यू है इट विल बी प्लस 0.80 वोल्ट। दैट मीन्स, और ये आपका राइट साइड में क्या है? सिल्वर। तो इसका वैल्यू आ जाएगी ई नोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। ये अगर आप उसमें देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आपकी बुक में ये दिया है प्लस 0.80 वोल्ट। तो इस तरह से यू नो हियर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके वैल्यू कितने हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की? इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। और इस सेल की जो नोटेशन होगी इस समय हमारे पास, इस सेल को हम कैसे लिखेंगे? इस सेल को लिखना, इस सेल की जो नोटेशन हम लिखेंगे, हमारे पास इस समय सेल है हमारे पास सिल्वर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक कंप्लीट सेल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर H2 1 एटमॉस्फेयर, देन प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हमने यूज किया इसमें, और ये फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है आपकी, कितनी है इसमें कॉन्सेंट्रेशन? 1 m है। और उसके बाद यहाँ पर आप लेंगे सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाद आप लेंगे बच्चों यहाँ पर सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन है जो भी होगा, कॉन्सेंट्रेशन C1 है मान लीजिए इसका, और C1 मोल, और फिर आप ले लेंगे सिल्वर सॉलिड। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो सेल है ये सेल नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन है। और इसका जो नोटेशन है सेल का H2 1 एटमॉस्फेयर, दैन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दैन जैसे हम लेते हैं उसके बाद सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन के साथ उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होती है 1 मोल पर लीटर। उसके बाद सिल्वर का जो सॉल्ट है, सिल्वर का जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। और इस तरह से इसका अच्छा, इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? H2 से H बनेगा, H2 से हमारा बनेगा 2H पॉजिटिव बाय लूजिंग, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्लस हो जाएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन किस एंड पे होती है? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑलवेज एट एनोड। तो रिएक्शन हमारी होगी एनोड की। और दूसरी रिएक्शन हो जाएगी, इससे ये बनेगा और इधर से इससे ये बना देंगे, मीन्स Ag पॉजिटिव से बन जाएगा Ag सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। ये कौन सी रिएक्शन होगी? इसमें Ag प्लस से रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये हो गया हमारा रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है बच्चों? ये होता है कैथोड पे। इट टेक्स प्लेस एट कैथोड। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गई हमारी? H2 ये गैस प्लस वाइस Ag ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया, इज इक्वल टू 2H पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन एंड प्लस वाइस Ag सॉलिड। ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे 2 हैं। इट इज एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन।
तो यहाँ पर ई कॉपर माइनस ई जिंक, तो जो अभी हमने दो इक्वेशन बताई हैं उन दोनों इक्वेशन को हम वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, आप वहाँ से वैल्यू पुट करिए और ये वैल्यू है हमारी ई, इस कॉपर की वैल्यू हो जाएगी ई नोड सेल कॉपर माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ और एल एन 1 अपॉन, क्योंकि जो सॉलिड है सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे हम 1, आपको मालूम है कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड इज ऑलवेज टेकन एज 1, कॉन्सेंट जिंक आयन, एंड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू of this zinc minus RT divided by NF ln 1 upon Cu। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट आना है, यहाँ पर आपका ये बच्चों Cu है और यहाँ Zn आ गया, Zn Cu। तो अब आप सिंप्लीफाई करिए इसको, ये हो जाएगा ई नोड Cu माइनस ई नोड Zn, एंड माइनस ये वैल्यू दिस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन, तो दिस माइनस दिस हो गया, तो यहाँ से बन जाएगा Zn प्लस 2 अपॉन Cu, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी बच्चों, क्या बन जाएगा ये, ई सेल इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, ई नोड सेल, दिस इज राइट माइनस लेफ्ट, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, ई सेल, दिस वन माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन Zn constant of zinc ion divided by constant of copper ion, this is Nast equation, ये Nast equation है। और इसको हम यहाँ पर Ln को जब हम log base 10 में चेंज करते हैं तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आगे। तो इसको देखिए ध्यान से, ये कैसे हमने Nast equation से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है EMF ऑफ सेल, इट इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस दिस वन। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों को हमने एलिमिनेट किया, और जब हम लो Ln को, Ln है, Ln का मतलब होता है, ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस तरह के वो कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं। तो जो Ln होता है, Ln का मतलब होता है बच्चों, Ln x इज इक्वल टू, ये होता है log x बेस ई, और जब इसको हम बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 log x बेस 10 में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये होता है। मतलब जो ln(x) हो गया, इसका मतलब होता है 2.303 log x बेस 10। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो ये जो ई नोड सेल है ये हमारा बन जाएगा अब आपका ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ concentration of more active metal
या राइट साइड कॉन्सेंट्रेट ऑफ राइट साइड सॉल्यूशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन सॉरी लेफ्ट साइड डिवाइड बाई राइट साइड। जैसे आपका सीक्वेंस रखा इधर से इधर जाते हैं आप ऐसे जाएंगे तो रास्ते में आपके सबसे पहले कौन आएगा, जिंक। तो जिंक सबसे ऊपर आ गया और कॉपर नीचे। और यहाँ पर ये याद रखें हमेशा कुछ बुक्स इसको पॉजिटिव देंगी, हमें केवल नेगेटिव याद रखना है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन ये हो गया। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 96500। तो ये वैल्यू पुट करने पे तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई n इंटू 96500 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जेडन आयन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम केसी भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये कंसंट्रेशन का टर्म्स हमें याद रखना है। तो ये वैल्यू बच्चों जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं पूरी वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू आती है ये आती 0.059। तो अब हमारी शॉर्ट इक्वेशन मैंने जो आपको हमेशा याद करनी है, हमेशा यूज करनी है, ये होगा ई नोड सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ के सी। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, या ये वैल्यू गिवन होंगी आपको, ये वैल्यू गिवन होगी। दैट इज जो के है हमारा ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। मीन्स जो सेल में जो मोर एक्टिव होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा। ये के ले सकते हैं या सीधा ये ले सकते हैं। तो ये हमारी एक नस्ट इक्वेशन बन गई। इस पे न्यूमेरिकल हमेशा आता है, याद रखिए। एन क्या होगा, एन जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन गिवन या कितने इलेक्ट्रॉन टेकन। ये याद रखिए कि ये जो दोनों का जो चार्ज होता है बच्चों, ये चार्ज +2 यहाँ भी +2 है, तो दोनों के चार्ज का एलसीएम n होता है। अगर यहाँ चार्ज 3 होगा और यहाँ चार्ज 2 होगा तो ये वैल्यू n की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ चार्ज, क्योंकि जब आप इक्वेशन को बैलेंस करके रखेंगे, एक का चार्ज +2 है, दूसरे का चार्ज +3 है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इक्वेशन है। इसके ऊपर हम अगले उसमें वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।